آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ حکومت اور ادارے پوری یکسوئی سے ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ حکومت اور اتحادیوں کو بھرپور حمایت حاصل ہے، جنہوں نے ہر مشکل میں ساتھ دیا۔ حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس سے خطاب۔ کہا، IMF کی شرط کے مطابق ایکسٹرنل فائنینسنگ کا گیپ پورا کرنے کے لیے میں اور آرمی چیف دوست ملکوں کے پاس گئے، کچھ ملکوں میں الگ الگ اور کچھ ملکوں میں اکٹھے گئے۔ دوست ملکوں سے مدد مانگی، تب جا کر یہ گیپ پورا ہوا۔ جب ہم IMF سے بات کر رہے تھے تو وہ کون تھا جو ان کو خط لکھ رہا تھا؟ مہنگائی کی شرح کم ہو کر 1.5% اور پالیسی ریٹ 12% پر آ گیا ہے۔ ہم 9 مئی کے نہیں 28 مئی کے علمبردار ہیں۔ ہماری معیشت جو 1 سال پہلے ہچکولے کھا رہی تھی، ڈیفالٹ کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی کہ جب ہم IMF سے گفتگو کر رہے تھے، وہ کون تھے جو IMF کو خطوط لکھ رہے تھے کہ پاکستان کا پروگرام اپروو مت کریں؟ اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ یعنی شکست و ریکس سے نکل کر استحکام کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے لیے میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا اور PDM کے زمانے میں جو ہمارے اتحادی اور آج اس حکومت میں ہمارے جو ساتھی ہیں پیپلز پارٹی، آپ یقین کریں کہ بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، آج ادارے بھرپور طور پر ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ میں گیا اور چیف آرمی سٹاف جنرل آصف منیر گئے، کئی جگہ ہم اکیلے گئے، کئی جگہ ہم اکٹھے گئے، تب جا کر یہ گیپ پورا ہوا۔ دن رات کاوش کا نتیجہ ہے۔ تو یہ ٹیم ورک ہے، یہی فارمولا ہے، کوئی اور فارمولا نہیں۔ ملک میں مہنگائی کم نہیں ہو رہی بلکہ بڑھ رہی ہے، کوئی سرمایہ کاری بھی نہیں ہو رہی، حکومت جھوٹ بول رہی ہے۔ اس وقت انسٹالڈ رجیم ناکامی کا اظہار کر رہی ہے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ کا شعبہ بھی سکڑ گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے افراط زر سے متعلق اعداد و شمار غلط قرار دے دیے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی تنقید، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ PTI دور میں بجلی کا فی یونٹ 17 روپے کا تھا، جو آج 85 روپے کا ہے۔ 400% اضافہ گیس کی قیمتوں میں ہوا ہے۔ اس وقت جو انسٹالڈ رجیم ہے وہ میرا خیال ہے اپنی ناکامی جو ہے اس کا اظہار کر رہی ہے۔ ان کے پاس ناکامی کے علاوہ کچھ ہے نہیں، اور میں آپ کو اعداد و شمار پر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچر بڑی صنعتیں آپ کی پچھلے 6 مہینے میں اس بجٹری سال کے 2% سے وہ سکڑی ہیں۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ، اور وہ آپ اندازہ لگا لیں، پاکستان تحریک انصاف کے وقت 17 روپے یونٹ، آج 85 روپے یونٹ بجلی کا ہو گیا ہے۔ 400% یعنی کہ 4 گنا اضافہ گیس قیمت میں ہو گیا ہے۔ آٹا، چینی، دالیں، کرائے، ہر چیز میں اضافہ۔ آپ کی جو لوگ ہیں پاکستان کے، وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے سے واپس لائے ہیں۔ ہم نے معیشت کو بچایا جو بعض عناصر کو ہضم نہیں ہو رہا۔ آنے والے دنوں میں چیلنجز کا بہتر انداز میں مقابلہ کریں گے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ معاشی خود انحصاری کی طرف بڑھیں۔ ہمیں مستقبل میں مضبوط معیشت کی ضرورت ہے۔ محفوظ مستقبل کے لیے بیرونی قرضوں سے نجات بہت ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف معاشی استحکام کے لیے کوشاں ہیں، جبکہ مخالفین پاکستان کو ڈیفالٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، آئندہ پالیسیاں جدید ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھ کر بنائیں گے۔ ڈیفالٹ سے بچ جانا کچھ عناصر کو ہضم نہیں ہو رہا، بیرونی قرضوں سے نجات اور مضبوط معیشت ناگزیر ہے۔ اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مسابقتی کمیشن کی بلڈنگ کی افتتاحی تقریب میں کہا کہ ہمیں معاشی خود انحصاری کی جانب بڑھنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف معاشی استحکام کے لیے کوشاں ہیں، جبکہ مخالفین پاکستان کو ڈیفالٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ And I tell you, جو آپ کے ویل وشز نہیں ہیں، they would love to see you in default. They would love to see you in problem, in economic problem. Reason? Because you are a nuclear power, the only Islamic country in 57. You are a missile, قوت, and it doesn't digest. وزیر خزانہ اورنگزیب نے بھی تقریب سے خطاب کیا اور کہا ملکی معیشت بہتر ہو رہی ہے، آئندہ کی پالیسیاں جدید ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھ کر بنائیں گے۔ Journey that you are in with respect to people, process, technology and associated transformations, all of those are going to be very critical for the continued success of the Competition Commission. چیئرمین مسابقتی کمیشن پاکستان نے اس موقع پر کہا کہ پہلے ہمیں بھاری رقم کرائے کی شکل میں دینا پڑتی تھی، اب کرائے کی مد میں بچنے والی رقم سے اسپیشلائزڈ سٹاف بھرتی کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں PTI نے ملک میں انتشار پھیلایا، ہر قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہم نے مشکل حالات میں حکومت سنبھالی۔ حکومتی اقدامات سے تمام اداروں میں ترقی کا سفر جاری ہے، مثبت تنقید کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
खंडरात थे, चाहे वो माशी थे, सियासी थे, अखलाकी थे, इंतजामी थे, उन खंडरात से दोबारा जो है एक उम्मीद जो है वो सामने नजर आ रही है। एक एतमाद की फिजा जो है वो कायम होती है, जो आज से 1 साल पहले मुश्किल थी, या उसको इमेजिन करना भी जो था वो एक ख्वाब था। जिन हालात से हम दो चार थे, ना सिर्फ ये है कि उस हालात का मुकाबला किया गया, उन हालात को रिस्टोर किया गया इकोनॉमिकली, उन हालात से निकल कर एक नए सफर का आगाज भी कर दिया गया। उन्होंने पावर दोबारा ग्रैब करने के लिए पहले मुल्क के अंदर एक इंतशार फैलाया जो अभी भी जारी है, उसके बाद बैरूनी ताकतों को इनवाइट किया। आज भी वो इनविटेशन जो है लेके उनके दहलीज के ऊपर खड़े हैं कि यहाँ पे इंटरवेंशन की जाए और उनको दोबारा इक्तदार में लाया जाए। तो ये दो धारी तलवार है जिसका वज़ीर-ए-आज़म साहब आप मुकाबला कर रहे हैं। एक अंदरूनी हमारे हालात हैं और एक खलफशार जो हमारे खिलाफ जो है बैरूनी महाज पे खड़ा करने की कोशिश हो। उसमें ये रिकवरी जो है, मैं समझता हूँ कि ये 1 साल पहले ख्वाब हो सकता था जो अब हकीकत का रूप दा रहा है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान से मुतालिक बानी पीटीआई ने कुछ हिदायत दी हैं जो उन तक पहुँचाएंगे। हमारी ख्वाहिश है कि मौलाना हमारे साथ चलें। बानी पीटीआई ने फैसल चौधरी को जेल मामलात पर कानूनी मुआवनत से रोक दिया है। कानूनी मुआवनत के लिए वकील ज़हीर अब्बास को काम सौंप दिया। नियाजुल्लाह नियाज़ी बानी पीटीआई के तर्जुमान होंगे। के हवाले से है, देखिए बहुत अफवाहें फैलाई गई हैं पिछले चंद दिनों से कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, कोई हंगामी तौर पे डॉक्टर उनको देखने आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। मामूल का एक चेकअप हुआ है, हम दरख्वास्त दे देंगे कि जो उनके ज़ाती मालिज हैं वो भी उनको देख लें, लेकिन उनकी सेहत के हवाले से कोई शिकायत नहीं है। फिर एक और बात चली कि शायद उनको जेल में सहरी नहीं दी जा रही या उनको इबादत में कोई खलल डाला जा रहा है। ऐसा भी कुछ नहीं है। उनकी बहनें उनको मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बात उनकी सेहत के हवाले से छुपाई जाती है। पेशावर में वकास अकरम साहब जो हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उनसे कहा है कि इस बारे में वो पूछें कि ये बयान क्यों दिया गया। उनका जवाब आएगा तो आगे देखेंगे। तो इस हवाले से गुलाब मुतमईन। रमज़ान में लोड शेडिंग पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया है। कहा, रमज़ान में बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने सूबे भर के आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। बतौर वज़ीर-ए-आज़म आपके बिजली और गैस की लोड शेडिंग न होने के ऐलान पर अमल नहीं किया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं। दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तानी टीम में बड़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और नसीम शाह T20 टीम से बाहर हो गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को वनडे में जगह नहीं मिली। तजर्बेकार खिलाड़ियों की T20 स्क्वाड से छुट्टी। नए चेहरे लॉन्स, क्यादत सलमान आगा के सपुर्द। नसीम, शादाब और शाहीन भी रगड़े में आ गए। कीवीज के देश कौन कौन जाएगा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम सामने आ गए। रिजवान और बाबर आजम को T20 स्क्वाड के लिए मिसफिट करार देकर बाहर कर दिया गया। T20 में क्यादत सलमान अली आगा के सपुर्द कर दी गई। शादाब को नायब कप्तान बना दिया गया। 16 रुकनी टीम में फास्ट बॉलर नसीम शाह भी जगह न बना सके। वनडे कप्तानी के लिए मोहम्मद रिजवान पर एतमाद बरकरार रखा गया है। शाहीन और हारिस रऊफ को ड्रॉप कर दिया गया। अब्दुल्ला शफीक दोबारा स्क्वाड का हिस्सा बन गए। डोमेस्टिक में उम्दा कारकर्दगी दिखाने पर हसन नवाज, आकिफ जावेद, मोहम्मद अली और अब्दुस्समद को भी टीम में एंट्री मिल गई। 16 मार्च से शेड्यूल दौरा न्यूजीलैंड में कौमी टीम 5 T20 और 3 वनडे मैचेस खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। न्यूजीलैंड के बाद जनूबी अफ्रीका ने भी कमर कस ली है। जनूबी अफ्रीका की टीम इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही है। नुमाइंदा लाहौर आकिब कुरैशी इस वक्त स्टेडियम में मौजूद हैं। आकिब बताइए इस मुतालिक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कज़ाफी स्टेडियम पर, जहाँ पर जनूबी अफ्रीका की टीम प्रैक्टिस सेशन कर रही है। दिन की रोशनी में यहाँ पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने जो है अपना 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन किया था। अब जो है साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ़ है। बॉलिंग के जो है उनकी बात की जाए तो बॉलर्स जो उनके, जिसमें मार्को जेनसन, कागिसो रबाडा, लुंगी नगीडी और वियान मुल्डर, इन चारों के लिए अलहदा कैंप लगाया गया है, अलहदा नेट लगाया गया है, जबकि बल्लेबाजों के लिए एक अलहदा नेट लगाया गया है। और वहाँ साउथ अफ्रीका की प्रैक्टिस की यहाँ पर बात करें तो उनका यहाँ पर 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन जो है वो जारी है। 7 बजे प्रैक्टिस सेशन का शुरू हुआ था, जिसके बाद अभी भी जो है इनकी प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर जारी है। और कोचेस की ज़ेर निगरानी जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज भरपूर किस्म की यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान कल चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाना है, जिसके लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। अहम मैच जो है नॉकआउट मैच वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे खेला जाएगा और जो सी टीम जीतेगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। जी आगे बढ़ते आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने रिमार्क्स दिए कि PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़ा हैं। जो दस्तावेज़ात आपने दी हैं वो मुकम्मल नहीं। PTI के अंदरूनी मामलात कौन चला रहा है।
बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो मामला हल होगा। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए, ये मुमकिन नहीं कि फैसला महफूज करके अदालती फैसले का इंतजार करें। 9 मुंतखब वज़रा और मुशीरों को कलमदान देने का मामला, ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुशावरत मुकम्मल कर ली है। 9 मुंतखब वज़रा को कल कलमदान मिलने का इम्कान है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN औरंगज़ेब काकड़ से। औरंगज़ेब, बताइए किसको कौन सा कलमदान मिलने जा रहा है? जी, 9 मुंतखब वफाकी वज़रा, वज़ीर मुमलिकत और जो इसके साथ साथ जो दिगर जो वज़रा है उन्हें कलमदान देने के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत मुकम्मल कर ली है। ज़रा के कहना कि कल 9 मुंतखब वफाकी वज़रा और वज़ीर मुमलिकत को कलमदान दिए जाने का इम्कान है, जबकि अली परवेज़ मलिक जो वफाकी वज़ीर है उन्होंने हल्फ उठाया, उनको जो है वो वज़ारत पेट्रोलियम मिलने का इम्कान है, जबकि जो वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक को जो महकमा मौसमियाती तब्दीली भी मिलने का इम्कान है। बलूचिस्तान अवाम पार्टी से खालिद मक्सी को वज़ारत आबी वसाइल, MQM के जो मुस्तफ़ा कमाल उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वज़ारत दिए जाने का इम्कान है। इसके साथ साथ जोशिज़ा फातिमा वज़ीर मुमलिकत बराए IT है, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर का हल्फ उठाया, उन्हें जो वज़ारत IT दिए जाने का इम्कान है। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो दिगर अपने करीबी रुफ़का और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल कर ली, जबकि ज़रा के कहना है कि 9 मुंतखब वफाकी वज़रा, वज़ीर मुमलिकत और दिगर जो मशीर हैं उन्हें कल जो है वो ओहदे दिए जाने के इम्कान है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से परवेज़ खटक को मशीर बराए वज़ारत बैनुल सूबाई राब्ता दिए जाने का इम्कान है। ठीक है औरंगज़ेब काकड़, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया।